रिकॉर्डिंग की फिक्र होती है। Okay, now how to calculate that expected return using capital asset pricing model? That is our next discussion. Now, probably we will discuss this in our next class using a data from Pakistan Stock Exchange website, and then we will develop or even we will calculate expected return using capital asset pricing model. Now, just assume that while using capital asset pricing model or a total yield formula, total yield formula, we got to know about the expected return, that is minus 20%, 70%, 30 or 10, whatever. Now, after calculating expected return, what we need to do, if there is a comparison, even we wanted to calculate expected return of a particular security, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, there is a one condition of probability. That probability will help you to develop your own portfolio in our coming classes. But here the probability is the chance of risk. ये हमें यहाँ पे बताता है कि रिस्क एसोसिएट कितना है. Like in our economic situation, we are going to take a simple example of recession and boom. You are familiar about it that return of stock market is not fixed. It's being varied. और ये change क्यों होता है? Because of the economic situation of any country. और इसी को ज़हन में रखते हुए हमने ये डेवलप किया है कि लाइक if a country is in recession form, or there is a chance that 50% चांसेस हैं कि कंपनी रिसेशन में, या कंट्री जो जिस स्टॉक मार्केट के अंदर हम बात कर रहे हैं रिसेशन के चांसेस होंगे, और इफ इकोनॉमी इज इन अ बूम स्टेट, और ये 50-50 चांस है, दैट प्रोबेबिलिटी might vary as well. You can write 30% recession or 70% boom as well. So it's according to your own analysis, your own expertise, or even data taken from the government as well. तो वहाँ से आप एनालाइज करके बताएंगे कि चांसेस क्या है, और दैट प्रोबेबिलिटी, द स्टेट ऑफ प्रोबेबिलिटी विल हेल्प यू. और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स. उसमें से एक मैंने आपको बताई है इकोनॉमिक फैक्टर. There might be other factors as well, and according to the different situations your return or future return will change as well. So उसमें से एक एग्जांपल आज करेंगे, बाकी इस चैप्टर को हम डिटेल से आगे इसी लेक्चर्स में लेके भी चलेंगे. तो just assume two states, it's recession and boom. It's a simple example to understand the adjustment of probabilities into the expected return. In recession, let's suppose we have 30% probability, and in boom we have 70% chances that the market will increase in a future. मार्केट में बूम आएगा, इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी होगी, और 30% चांसेस है कि रिसेशन होंगे. और एट द टाइम व्हेन कंपनी इज इन रिसेशन, रिटर्न जो था वो नेगेटिव में चले जाते हैं, दैट इज अराउंड 20%. रिसेशन फेज में आपने देखा, और बूम फेज में जो रिटर्न था दैट इज 70% रिटर्न. दैट इज वेरी हाई. Now, how we will calculate expected return using probability? इससे पहले जो मैंने आपको expected return बताया था, जो मैंने फिर मैं रिवाइज करूँ कैपम के थ्रू, वो रिटर्न आपके पास आ रहा है विदाउट कंसीडरिंग प्रोबेबिलिटीज. वो सिंगल वैल्यूज है ना. लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी स्टेट में जाते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट कंडीशंस में कंपनी के रिटर्न्स को वैल्यूएट करना है, तो वो अभी हम ये कर रहे हैं. उसको आपने जितनी भी आप सिचुएशन में जाएंगे उनको सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी असाइन करनी है. आफ्टर असाइनिंग द प्रोबेबिलिटी, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी विद द स्टॉक वैल्यू. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट, यू विल गेट, एक होता है आपको याद होगा वेटेड एवरेज होता था, एक सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज होता है, और दैट इज कॉल्ड योर वेटेड एवरेज. फर्स्ट जो रिटर्न है इसका 30% वेट हमने ले लिया, और फॉर सेकेंड रिटर्न we will get 70% weight, or this is the expected return of two stages. इनको sum up करेंगे, that is our total expected return using recession and boom state, that is 43%. And for stock U, we have 30% return and 10% return in two states. Here just multiply the probability of states with the return,
you will calculate expected return of that security. But do remember it that expected return will be calculated first and then you can move on to that solution. So understanding of expected return is very important in today's lecture. But that is important to know. The first is total yield is important to understand how we can calculate expected return using total yield, and second option is CAPM. Now in coming lecture we will टॉक अबाउट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये बहुत डिटेल से हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे और कैसे हम मार्केट से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को यूज़ करते हुए डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अब करेंगे। ये इसकी एक्सरसाइज के बाद फिर मैं आपको एक इसका शॉर्ट सी प्रोजेक्ट भी भेज दूंगा। और नेक्स्ट हमारी क्लास है मंडे को 1 आवर की क्लास में हो जाएगा। If we develop templates earlier, then ठीक है, we'll do it. Okay, yes. Any question? Anyone from the class? Is there any? क्लियर है सर? Everything is clear? यस सर। अब आप लोगों ने सर ये लेक्चर्स आप अपलोड यूट्यूब पे करेंगे लास्ट टाइम की तरह? जी लिंक आपको मिलेंगे और अभी आप लोगों ने ये काम करना है, आप सब ने अभी इसी ये जो क्लास मीटिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा मुझे। ओके, इसी क्लास मीटिंग के अंदर आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं आपने लेक्चर नोट्स के, अभी जितना हमने डिस्कस किया एवरीवन, उसी की बेस पे आपकी अटेंडेंस वगैरह मार्क हुआ करेंगे। इसी मीटिंग के मैसेज में जाके आप अपने लेक्चर नोट्स के स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें, उसके बाद मैं मीटिंग ऐड कर दूंगा। Whatever. 20, you mean 20 probability? Excuse me, sir. Yes. सर अब अभी आपने बताया मीटिंग के लास्ट में जाके है ना, आपने जो भी लेक्चर नोट किया वो आप उसका नोट भेजना। सर इसका सारी सर कहाँ पे कैसे होगा यार? इसी मीटिंग के अंदर जब आपके पास जो स्क्रीन है ना, वहाँ पे मोर में जाएं, चैट की ऑप्शन आती है, उस चैट की ऑप्शन में ना आप इसको मुझे भेज दें। ये भी एक का आया है, ये मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुझे भेज दिया है। कैन यू सी? ओके, सर यहाँ पे